Good morning, students. We are doing our poem Indian Weavers, which is written by most prominent female Indian English author Sarojini Naidu. She was being called Bharat Kokila or the Nightingale of India, and this tag was given to her by Mahatma Gandhi. He called her Bharat Kokila or Nightingale of India because of the color, the imagery, the freshness, the lyrical quality which her poems possessed. Now, moving on to the text of the poem, in the second paragraph, the poet says, Weavers, weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Now, here the first stanza of the poem refers to the young age of a man's life, that when a child is born, when he is infant, and that stage is full of happiness, full of brightness. There is no sorrow, no despair, nothing. Now again the poet is asking to the weavers, वो बुनकरों से सवाल करती है कि weavers weaving at fall of night. Fall of night means when the sun is setting, शाम का वक्त है. Evening or dusk, when the sun sets and darkness paves the way. बीच का वक्त है जब धीरे धीरे सूरज तो है क्या ढलने लगता है और रात्रि जो है वो एकदम आने लगती है. तो वो जो बीच का समय होता है, इवनिंग टाइम और द डस्क, उसको रेफर करते हुए फॉल ऑफ नाइट, द पोएट इज आस्किंग द वीवर्स दैट व्हाई एट दिस टाइम यू आर वीविंग एंड व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट. और इस समय तुम ऐसा गारमेंट, ऐसा क्लोथ क्यों बुन रहे हो जो कि बहुत ही चमकीला है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत चमकीला, रोशनी का ऐसे नज़र आ रहा है, बिल्कुल इट इज़ फुल ऑफ शाइन, कि बहुत ज़्यादा शाइन है उसके अंदर. वाई आर यू वीविंग सच क्लोथ? दिस टाइम देयर इज़ अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइम, जब धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और रात आने लगती है. तो दिस इज़ द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियन मैरिजेस टेक प्लेस. भारत में इस समय काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, शादियाँ जो हैं वो मैक्सिमम इसी टाइम पर की जाती हैं. ठीक है, तो इट इज़ द स्टेज इज़ रेफरिंग टू द अडल्टहुड. अडल्टहुड का जो समय है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ जेस्ट, एंड ही वांट्स टू अचीव सच सक्सेस, so much of heights in his life, and then he or she decides to get along with a partner, and they decides to get married and then to take their family forward. ये इसको भी क्या कर रहे हैं, symbolize कर रहे हैं. The weavers reply, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. Like the plumes of a peacock. Plumes मतलब feathers. कि जिस प्रकार से peacock मोर के जो पंख होते हैं, उसके feathers होते हैं पर्पल एंड ग्रीन कलर के, वो बहुत ही जब अपने वो पंख पूरे खोलता है, जब मोर डांस करता है और अपने पंख पूरे खोलता है, तो जिस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन है, कहीं पर्पल है, कहीं ग्रीन है, तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है, बहुत ही ज़्यादा वो हमारी आँखों को अट्रैक्टिव लगता है. तो उसी प्रकार का हम उन्हीं रंगों का हम कपड़ा जो है वो बुन रहे हैं. एंड वी आर वीविंग द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन. और हम ये क्या बुन रहे हैं, दे आर वीविंग द मैरिज ड्रेस. एक रानी है, उसकी हम मैरिज की ड्रेस जो है वो बना रहे हैं. व्हील्स मतलब बेसिकली घूंघट, और हम मैरिज का जो ड्रेस है रानी का वो बना रहे हैं. बेसिकली दे आर वीविंग द मैरिज ड्रेस ऑफ अ पर्सन. Now, the garment being weaved at this time is so bright, like plumes of peacock, like feathers of peacock, purple and green. The weavers reply that they are making marriage dress, that is wheels of a queen. Thus, it refers to adulthood. During this time of life, during this stage of life, that is adulthood का जो stage है, humans are active, persons are very active. जब हम व्यस्त होते हैं, we are full of energy, full of life, we are so active. And they start loving each other.
they start making companionship, doing companionship. They start love each other, get married for a better life, and then people decide to get married to each other. And when they decide to get married to each other, they do this because of the prospect of a better life. उनको लगता है कि भाई जीवन हम और आगे अपना साथ में बढ़ाएंगे और अपने दुख सुख बांटने का क्या है, हमको साथी मिल गया है. Colors green and purple symbolize sorrow and happiness, or struggle and ease in one's adult life. Now the color significance is here. जो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल कलर की जो बात की गई है, तो दीज कलर्स सिंबलाइज सॉरो एंड हैप्पीनेस. जब मनुष्य जो है वो अपने अडल्टहुड में होता है तो वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है. ही इज़ मेकिंग हिज करियर ऑल्सो. जीवन साथी का भी चुनाव करना है, फिर शादी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, अपने घर में बूढ़े माता पिता हैं, मतलब आपके ऊपर कई सारी क्या है जिम्मेदारियां आ जाती हैं. अ पर्सन्स शोल्डर इज फुल ऑफ so much of responsibilities and everyone tries to fulfill these responsibilities. और इन responsibilities को निभाते निभाते अपने आप को भी संभालते हुए क्या है, कभी सौरों का वक्त आता है और कभी हैप्पीनेस का वक्त आता है. दोनों चीज़ें होती हैं लाइफ में. कभी हम सुखी होते हैं तो कभी हम दुखी होते हैं. कभी हमको बहुत कष्ट सहना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल का टाइम देखना पड़ता है, और कभी हम बहुत सुकून भरा जीवन जीते हैं. तो अडल्ट लाइफ जो है वो इस तरह की अप्स एंड डाउन्स की होती है. तो दिस सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम इज सिंबलाइजिंग मेटाफोरिकली. इट टॉक्स अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ a human's life, that is adulthood, which is full of ups and downs, the topsy-turvy of the life cycle, जिसमें कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत दुखी होते हैं. Now finally she says, weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? That weavers weaving solemn and still, solemn means so quiet, still without any movement. That you are so, why you all are so quiet, why you all are not moving, कि तुम इस वक्त what do you weave in the moonlight chill. chill means जब बहुत ठंड हो रही हो, the atmosphere is so cold, कि बिल्कुल ये चांद की रोशनी में इतनी ठंड में तुम क्या बुन रहे हो, और बिल्कुल तुम लोग शांत हो, कुछ ना हलचल हो रही है ना कुछ. why do you all so silent and what are you weaving at this time? मूनलाइट है तो इसका मतलब क्या है, ये रात्रि का समय है, बहुत ठंड है, बिल्कुल ठंड पसर चुकी है सब जगह, और चांद जो है वो चमक रहा है और रात्रि का बिल्कुल समय है, और ये बिल्कुल बिना हिले डुले एकदम साइलेंटली बुन रहे हैं. तो शी इज़ आस्किंग दैट व्हाट आर यू वीविंग एट दिस टाइम ऑफ नाइट, व्हाट आर यू वीविंग, कि तुम क्या बुन रहे हो. White as a feather and white as a cloud, weaving a dead man's funeral shroud. Now the weavers reply that वाइट कलर का हम एक कपड़ा बुन रहे हैं, जो कि किस तरह का वाइट है. इट इज़ वाइट एज अ फेदर, जैसे कि पक्षियों के पंख, सफ़ेद जो पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं, जिस प्रकार वाइट को जो कलर है इट सिंबलाइजेज व्हाट, पीस, शांति का प्रतीक है. जो बिल्कुल जीवन का उतार चढ़ाव, दुख दर्द तकलीफ़ें और आपकी सक्सेस, आपके डाउनफॉल्स, एवरीथिंग, सब कुछ क्या है एकदम शांत हो चुका है. तो वाइट कलर सिंबलाइजेस व्हाट, पीसफुलनेस, कामनेस. तो वाइट एज अ फेदर, जिस प्रकार से फेदर जितना सफ़ेद है उसी प्रकार का सफ़ेद, एंड वाइट एज अ क्लाउड, जैसे कि बादल सफ़ेद होते हैं उसी प्रकार का सफ़ेद. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. श्राउड मतलब कफन, कि हम क्या बुन रहे हैं, एक मरे हुए व्यक्ति के लिए क्या है, कफन बुन रहे हैं. So in the final stage the weavers are quite sorrowful. They are so quiet, they are still without any movement, and they are so sorrowful and silent. They are weaving clothes in the dark night which is white, which is of white color, and it is lifeless. The cloth they are weaving is colorless, कोई कलर नहीं है उसमें, कोई
सिविलाइजेशन नहीं है, वो बस एकदम सफ़ेद रंग है और लाइफलेस है। दे रिप्लाई दैट दे आर वीविंग श्राउड फॉर अ डेड पर्सन, कि वो एक मृत व्यक्ति के लिए क्या है, कफन बुन रहे हैं। द थर्ड स्टेज, द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम सिम्बलाइजेज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, जो कि हमारा फाइनल स्टेज है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, दैट इज डेथ, विच इज इमोशनलेस एंड लाइफलेस। जब मृत्यु होती है तो कोई भी भाव जो है, क्योंकि ये हमारे जो उसके परिवारगण हैं, उस व्यक्ति के, उसके सहभागी हैं, उसको जानने वाले हैं, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। इट इज़ आउट ऑफ आवर context, we cannot do anything to bring the person back, because we don't have that power. तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम इमोशनलेस एंड लाइफलेस, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। एंड वी ऑल नो दैट यस इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि ये जीवन का सत्य है। जिस भी चीज़ ने जन्म लिया है उसको खत्म एक दिन होना ही है, he or she has to die. तो the final paragraph of this poem refers to the final stage of a person's life, that is death. And with this very short and sweet poem ends.